Bomber Omar's chilling confession. One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. Omar's pre-blast video accessed. This is the man who carried out the suicide bombing at Delhi's Red Fort. Omar justifies suicide bombing. You can see him sitting in one of the premises of Al Falah University, where he's trying to justify or at least give some twisted logic to what he did later. ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से अब पाकिस्तान ये चाहता है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए. Watch the level of indoctrination. This is the ideology of Al-Qaeda, which basically believes in suicide bombing. He has to circulate this ideology where he has to attend martyrdom, and other individuals should also do that. 10/11 terror tapes, only on Times Now. Namaskar, good evening. You're watching Breaking Ground and I am Swati Joshi. On this broadcast, the focus is going to be on the top 5 agenda-setting stories. So let's take a look at the top 5 stories. An unseen 80-second long footage of suicide bomber Umar Nabi lays bare the radicalized mind of terror doctors. His words are unsettling, beliefs are disturbing, and his calm demeanor offers a stark and terrifying glimpse into a mind consumed by extremist ideology. Despite Umar's chilling confession justifying suicide bombing, some in Congress party and the opposition are giving a cover fire to the terrorists. We ask, why whitewash terror for appeasement politics? Story number 3. Karnataka CM Siddaramaiah and DK Shivakumar's frequent but separate meetings with the Congress High Command raise eyebrows on the clear divide in the Karnataka Congress party. We'll also talk about the Supreme Court issuing notices to the Centre, CBI, ED, Anil Ambani and others on a PIL seeking a court-monitored probe into alleged massive banking and corporate fraud involving Reliance Communications, its group companies and their promoter. Later we'll talk about the embarrassing defeat in Bihar polls and Jan Swaraj Party founder Prashant Kishore taking responsibility, breaking his silence, accepting defeat. While on the other hand, Congress Party remains defiant and still talks about or blames voter chori. So let's shift our focus to the first big story that we are focusing on. This is the face of terror, a radicalized mind, a doctor who defends suicide bombing on camera. This is the unseen footage of Umar Nabi, a man who speaks with chilling ease about martyrdom operations, revealing the depth of his indoctrination. His words are unsettling, his beliefs are disturbing, and his calm demeanor offers a stark and terrifying glimpse into a mind that is completely consumed by extremist ideology. Let's first take a look at this 80-second long chilling video. One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. So you heard the suicide bomber of the Delhi blast justifying normalizing suicide bombing. Let's break down the details of the video. Let's break down the detail frame by frame. This confession was recorded inside room number 13 of the Al Falah University, the same university where Umar taught as an associate professor and where the agencies later recovered traces of ammonium nitrate from this almirah, which is right behind Umar as he is recording this video in room number 13. This right here is the almirah where traces
of ammonium nitrate were found. And what is the significance of room number 13? Remember, we told you earlier, in building number 17, room number 13, which was used as a meeting point by the terrorists, perhaps conspiracies were hatched here. They plotted the entire module here. Let's go across to Sahil Sohail, my colleague, who's joining us with more details. There's a video which has come to fore now in which Umar-ul-Nabi, the suicide bomber of Delhi blast, says that suicide bombing is a concept that has been misunderstood. And with absolutely, calm mind, there's nothing distressing on his face. He does not even flinch when he talks about suicide bombing as if it's a great thing. Well, yes, in fact, this video has, in fact, come into focus. And in fact, what we are picking up from the sources that it's the same room which he was, in fact, residing at Al Falah University, and in fact had recorded this video. And what is shocking is that in this video he is in fact putting his arguments to defend suicide bombing, and it appears that this video is in fact recorded, and in fact has taken multiple takes to record this particular video. Initially he appears calm and in fact defends in fact this suicide bombing, but left in fact the last few seconds show some in fact disturbing in fact pattern. It appears that he is unable to complete his in fact sentences, which is now in fact this video is now part of the investigation. It's already under in fact scanner, and I is investigating the case, but this video will help the investigating agencies to completely expose the whole of the plot and in fact what was going on and what was in fact his further plans. But as of now, the video basically established the fact that he was highly radicalized, despite being a professional doctor with highest in fact considered having highest intellect and qualification. Absolutely. Stay on with us. Let me also go across to Dipankar, who's also joining us on the broadcast from the Al Falah University. And Dipankar, we're given to understand that this video was shot from room number 13. Behind Umar is an almirah where traces of ammonium nitrate were found. This is what we reported earlier as well, that room number 13 was like a meeting room for the doctors. Well, yes, we are currently standing at the Al Falah University, which is the central point of the entire investigation that is going on in the Delhi bomb blast case. And this Al Falah University, that room number 13 that you were talking about, has been the communication center, and now the forensic analysis of that room has brought to fore that ammonium nitrate was found in that room. That means that there was some experimenting that was going on, or they would have stored that ammonium nitrate in that room and they were trying to mix it with certain other chemicals in order to create those IED. And remember, videos have also come to fore where that I-20, the I-20 which was blown up outside the Delhi's Red Fort area, that I-20 was parked inside this Al Falah University. And a few minutes ago, the Delhi Police Special Cell has also come into this place, this Al Falah University, and it was exactly at this, what my cameraman can show you, it was exactly at that table where they were checking the register in order to find out as to who has been coming in and going out. They were trying to trace that movement of those cars. Remember that one Brezza, the silver Brezza, was also found at this university, which was parked inside this university, which is one of the cars that is under investigation, along with one red EcoSport. So these are the three cars that have been coming under the investigation of the investigating agencies. Right, the ambit of the investigation is only widening. The financial transactions also under the lens. Dipankar and Sahil Sohail, my colleagues, thank you very much for getting us the details. We'll keep coming back to you. Let's shift our focus to how politics is playing out on the entire issue. Despite the chilling confession on camera, there are those giving a cover fire to terrorist. Congress MP Imran Masood stoked a controversy by downplaying Umar's confession. He called Umar bhatka hua admi. It doesn't end here. There is National Conference leader Bashir Ahmad as well, who deflected the blame onto BJP, emphasizing that dialogue is the only solution to maintain peace. Let me in fact break down the details. Let me take you through the exact quotes of these leaders, which emphasize the fact that
this has happened because there is a reason, there is a motive attached to it, almost to the extent of justifying. Umar एक भटका हुआ आदमी है as per Imran Masood, Congress MP. Let's tell you about Hussain Dalwai's statement as well. Another Congress leader who says blast must be due to Jammu and Kashmir injustice. Instead of blanket condemnation, every leader has a reason as to why it may have happened. Then you have Mehbooba Mufti, PDP president, who says Kashmir troubles echoed in the national capital. These are the comments that came in from the leaders who, instead of condemning, were seen justifying, attaching motives to it. Abu Azmi, Samajwadi Party MLA, says punishing innocents is unjust. So these are the series of reactions that came in. Let's also listen in to more reactions to the leaders. Listen in to them yourself and see how they try to whitewash terror and even suggest a dialogue with those who want bloodbath. सर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद में अब जो एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आई है डॉक्टर उमर की, जिसमें वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग असल में शहीदी के बराबर है, मार्टिरडम के बराबर है। आपको ये वीडियो भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये बात जो है वो खुलकर सामने रखी है कि किस तरीके से ये इस्लाम में बताया जाता है। देखिए, ये ना तो कोई प्रीचर है कि ये इस्लामिक विद्वान है। ये भटका हुआ एक आदमी है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के अंदर सबसे पहले तो खुदकुशी हराम है, खुदकुशी किसी सूरत भी जायज नहीं है। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की दी हुई चीज को आपको लेने का इख्तियार नहीं है। और दूसरे, आप इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, अपने आप को मार रहे हो, साथ में इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो आप तो कातिल हो। आपके लिए जन्नत का रास्ता खुलने का कोई मतलब ही नहीं है। आपके लिए जन्नत का रास्ता नहीं खुलेगा, आपके लिए जहन्नुम का ही रास्ता खुलना है ऐसे लोगों के लिए। और ऐसे भटके हुए लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ना इस्लाम से इनका कोई वास्ता मतलब है। ये भटके हुए नौजवान हैं। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक लग रहा है। किसी ने गलती की दिल्ली में जाके, तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उसके लिए। तो अगर कोई मुजरिम है उसको सजा दे दीजिए, मगर आम कश्मीरी लोगों के साथ इस किस्म का सलूक न कीजिए। और ये जो नौगांव में हादसा हुआ है, इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में अब डॉक्टर उमर का एक नया वीडियो सामने आया है। आपको हम वो वीडियो दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरीके से वो सुसाइड बॉम्बिंग को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। किसी ना कोई धर्म इजाजत देता है, ना कोई किसी को इजाजत देता है कि अपनी किसी हिंसा से निर्दोषों की जान ले। आतंकवाद को फौलादी हाथों से डील किया जाना चाहिए, कुचलना चाहिए। किसी भी देश के लिए, किसी भी धर्म के लिए इसमें सबको एक हो जाना चाहिए। कोई भी धर्म, कोई भी विचार हिंसा को अगर देशभक्ति बताए, धर्मभक्ति बताए, तो मैं नहीं मानता उसको। आतंकवाद की कीमत हमने इंदिरा जी, राजीव जी के रूप में चुकाई है। हमने अपने कई नेताओं को खोया है। आतंकवाद को कुचल दिया जाना चाहिए, निर्ममता से कुचल दिया जाना चाहिए। उसमें कोई जस्टिफिकेशन की बात करे तो वो आतंकवाद को बढ़ा रहा है, उसका खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान मसूद साहब क्या कह रहे हैं ये मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अगर उसने इस तरह का वीडियो डाला था तो हमारे जो सोशल मीडिया भारत सरकार के चेकर्स हैं वो कर क्या रहे थे। और जब 30 अक्टूबर को ही अमोनियम नाइट्रेट भारी मात्रा में इस मॉड्यूल के माध्यम से पकड़ी जा चुकी थी, तब भारत सरकार और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या सो रही थी। When a person at a particular time is not, you don't have. बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एक डॉक्टर जिसने बहुत पैसा खर्च करके डॉक्टर की सीट ली, उसके बाद डॉक्टरी सर्टिफिकेट लिया, उसके 35 साल तो हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर हम इस मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं, चाहे हम इल्ज़ाम किसी पे भी लगाएं। लेकिन 2019 के बाद जो नक्शा सामने आ रहा है, उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो ये देखें कि ये डॉक्टर वहाँ कैसे पहुँचा।
डॉक्टर इस जगह पे कैसे पहुंचा, चाहे सुसाइड ही था, कहाँ से ये किधर से ये सारा ये पहुंच के वहाँ उसने ये काम किया। दिल्ली बॉम्बिंग ब्लास्ट के जो मेन अक्यूज है उमर, उसकी एक वीडियो आई है, वो उस वीडियो में बोल रहा है सुसाइड बॉम्बिंग को ग्लोरीफाई कर रहा है, कह रहा है कि ये शहादत होती है। आप पहले ये वीडियो देखिए किस तरह से वो बात कर रहा है कि इस वीडियो में आप वीडियो को सुनिए एक बार। मार्टिरडम ऑपरेशन यानी कि शहादत की बात कर रहा है। तो कहीं से वीडियो देख के लगता है कि ये लोग ऑप्रेस्ड हैं या क्या है इनका, क्योंकि ये तो जो है ग्लोरीफाई कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बिंग को। देखिए ये आतंकवादी हैं और आतंकवादी अपने आप को सही साबित करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन आतंकवादी जो लोग मासूमों की जान ले रहे हैं, कभी कश्मीर में जान ले रहे हैं, अब दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई जिनमें मासूमों की जान गई, ऐसे आतंकवादी अपने आप को सही साबित करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि ऐसे सभी आतंकियों पे देश में एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, उनकी गिरफ्तारी कर रही हैं, और जो भी देश के दुश्मन हैं, जो भी इंसानियत के दुश्मन हैं, जो भी मासूमों को मार रहे हैं, उनको देश की सुरक्षा एजेंसियां, देश की जो सुरक्षा बल हैं, वो उनके सही जगह पे पहुंचाएंगे। ये सब आतंकवादी हैं जो इस तरह के वीडियो जारी करके अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इंसानों को मारने वाले, मासूमों की जान लेने वाले, वो कभी सही नहीं हो सकते। वो आतंकवादी हैं, उन्होंने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। Meanwhile, the Bharatiya Janata Party has strongly condemned the reactions coming in from the opposition, calling out opposition for justifying terror acts. Listen into the counter coming in. आज के दिन में अगर कोई भी पॉलिटिशियन या नॉन पॉलिटिशियन इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि डॉक्टर उमर ने जो किया वो किसी हालात के चलते हुए किया, तो मुझे लगता है कि वो भी उतना ही जिम्मेवार है जितना डॉक्टर उमर है, उसके ऊपर भी वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। I am pointing out to Mehbooba Mufti ji also, Dr. Farooq also and other leaders also, जो किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमलों में इन्वॉल्व हैं, ब्लास्ट में इन्वॉल्व हैं, उनको सपोर्ट करने की, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग और स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर फिर से काम पर। दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले आतंकी का खतरनाक वीडियो सामने आया है कि कैसे वो सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई कर रहा है, उसे शहादत बता रहा है। उसी दिन पर इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद उसे भटका हुआ युवा कहते हैं। हुसैन देलवी आके उसकी पैरवी करते हैं। माओवादी, मुस्लिम लीगी कांग्रेस फिर से एक बार आतंक की पैरवी कर रही है, क्योंकि उसके लिए वोट बैंक नीति राष्ट्र नीति के ऊपर है। Congress leader Hussain Dalwai is now joining us on the broadcast. Let's directly go across to him. Mr. Dalwai, क्या आपने उमर उन नबी का नया वीडियो देखा जिसमें वो कह रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो मार्टरडम ऑपरेशन है, वो कह रहा है इस्लाम में है, और ये भी कह रहा है कि मिसकंसेप्शन है सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर। आपकी सबसे पहले इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, व्हाट आर योर व्यूज? बेगुनाह को मारना ये इसके लिए इस्लाम में बहुत बड़ी कड़क सजा है। बेगुनाह मारने को, अभी बमकांड करते हैं तो उसमें कौन मरता है, उनका कुछ संबंध नहीं रहता, ऐसे बेगुनाह लोग खामखा मरते हैं, उनकी फैमिली उजाड़ी जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। और इस्लाम के नाम से ये बोलते हैं वो तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे पैगंबर ने ये बताया है कि कोई भी बेगुनाह लोगों को मारो नहीं, बल्कि उनके ऊपर हल्ला करने वाले को भी वो माफ कर देते। ये क्या बोलते हैं, ये जानबूझ के, मुझे नहीं लगता वो सही कौन है वो, लेकिन ये अगर इस तरह से प्रचार करते होंगे तो गलत बात है। ये इस्लाम को बदनाम करने वाली बात है। ये जो वीडियो है ये उसी उमर उन नबी का है जो कि दिल्ली ब्लास्ट मामले का सुसाइड बॉम्बर है। और जो आप कह रहे हैं, मैंने जो अभी आपकी राय सुनी, ये आपकी पहली प्रतिक्रिया तब क्यों नहीं थी सर जब ब्लास्ट हुआ? जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद आपने कहा कि मुसलमानों को पकड़ के हमेशा जेल में डाला जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, ये अन्याय जो कश्मीर में हो रहा है उससे जुड़ा हुआ है। उस वक्त ब्लैंकेट कॉन्डेमनेशन आपकी तरफ से क्यों नहीं आया? सीधे सीधे केवल इसको कंडेम कीजिए, इसमें पॉलिटिक्स क्यों आ जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो ब्लास्ट हुआ है वो बिल्कुल कंडेम मैं करता हूँ, कोई सवाल नहीं। लेकिन सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ जो वातावरण किया है उससे कुछ लोग गलत राह पे जाते हैं। मैं मुसलमानों को कहूंगा कि इस तरह से बामकांड करना या इस तरह से
लोगों को मारना ये बिल्कुल गलत बात है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी है। वो सबको लेके यहाँ के हिंदू भी आपके साथ है। हाँ। उनको लेके इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये रिलीजन का एंगल क्यों? बमकान करना। हुसैन दलवाई जी, रिलीजन का एंगल क्यों? आपने सबसे पहले रिलीजन के बारे में, इस्लाम के बारे में क्यों कहा? इसमें रिलीजन आप ही ने तो घुसाया ना। टेरर के केस में रिलीजन का एंगल आपने पहले क्यों घुसाया? इसको क्यों आपने कश्मीर से जोड़ा या मुसलमानों से जोड़ा? नहीं, ऐसा है। ये देखिए जो भी यहाँ बामकान वगैरह जैसे करता है, इस तरह की हरकतें करता है, वो हिंसावादी हरकत को मैं बिल्कुल उसका निषेध करता हूँ। वो किसने भी करने दो, वो हिंदू ने करने दो या मुसलमान ने करने दो या क्रिश्चियनों ने करने दो, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ ये देश गांधी जी का देश है। यहाँ अहिंसा का ये है, एक बोलबाला है, और अहिंसा के जरिए यहाँ ब्रिटिशों को हकाल देने का काम गांधी जी ने किया है। ये हम लोगों ने ध्यान में रखा। हाँ। ये गौतम बुद्ध की भी भूमि है जिन्होंने अहिंसा सिखाई है। तो ये यहाँ मुसलमान भी अहिंसा की ये तारीफ करता है। गांधी जी के मूवमेंट में बहुत सारे मुसलमान थे। तो क्या आप कहेंगे जो पहले आपने प्रतिक्रिया दी थी वो आप गलत हो गए थे? इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग द एक्ट ऑफ टेररिज्म आपने कहा कि मुसलमानों को हमेशा टारगेट किया जाता है। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं वो कंडेम ही करता हूँ। हाँ। सवाल ही नहीं, जो हुआ है वो उसको कंडेम करता हूँ। हाँ। मेरा कहना ऐसा है कि मुसलमानों को इस तरह से हम हरदम टारगेट करेंगे तो कुछ गलत काम, कुछ नौजवान लोग गलत रास्ते पे जा सकते हैं। ये तो आप मुसलमानों के क्या सवाल है, हो गया ना, साथ बातचीत, लेकिन ये तो टेरर का जस्टिफिकेशन हो गया। आज जरा सुनिए, आज प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हर दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहता है। ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, आप अचानक से, एक मिनट हुसैन दलवाई जी, ये आप जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं क्या टेरर का? अगर कोई बम धमाका होता है तो सीधे सीधे ये कहना कि ये गलत है, जो इसके लिए दोषी है उसको पकड़ो, ये कहने की बजाय आप इसमें मुसलमानों का एंगल डाल देते हैं। आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं क्या? एक सवाल और पूछ रही हूँ के साथ। इमरान मसूद कहते हैं कि ये भटके हुए लोग हैं। बिल्कुल गलत नहीं। पी चिदम्बरम कहते हैं कि ये ऐसे बने क्यों, हमको उस पर सोचना चाहिए। गलत कोट कर रहे हैं आप, मुझे बिल्कुल गलत कोट कर रहे हैं। जरा सुनिए मेरा, आप बिल्कुल गलत कोट कर रहे हैं। मैंने वो कंडेम किया है। जहां भी कोई भी इस तरह से बमकान होने दो। हाँ। या इस तरह की एक्टिविटी होने दो, हिंसक एक्टिविटी, उसका मैं हमेशा निषेध करते आया हूँ। इस तरह से मेरे ऊपर आप नुक्ताचीनी मत करिए। नहीं, मैं नुक्ताचीनी नहीं कर रही हूँ। जो आपने मुसलमानों को हमेशा टारगेट किया जाता है, ये स्टेटमेंट दिया था, केवल मैं उस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि ये दिस साउंड्स लाइक जस्टिफिकेशन ऑफ टेरर, कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा इसीलिए हुआ होगा, ऐसा। मैं बिल्कुल नहीं जस्टिफाई कर रहा। हाँ। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया हूँ। मेरा कहना ऐसा है कि मुसलमानों के साथ बातचीत करके उनके क्या सवाल आते हैं उसके ऊपर हल निकालिए। मुसलमानों को भड़काने का काम मत करिए, ये तो मेरा कहना है। हाँ। लेकिन दिल्ली में जो बमकांड हुआ उसका मैं कहाँ भी समर्थन किया नहीं। इमरान मसूद कह रहे हैं ये भटके हुए लोग हैं। इससे पहले पी चिदम्बरम ने कहा था कि एक फॉरेन इन्फिल्ट्रेटेड टेररिस्ट होते हैं, एक लोकल होम ग्रोन होते हैं। वो कह रहे हैं सर्कमस्टेंसेस, जिन हालातों में ये टेररिस्ट बने उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। डू यू बिलीव दैट दोस स्टेटमेंट्स आर राइट और दे शुड नॉट बी मेड? नहीं, वो उमर नबी, जिसने जो कहा है ना कि इस्लाम में इस तरह से हो सकता है, वो बिल्कुल गलत है। इसमें इस्लाम का कोई संबंध नहीं। इस्लाम के नाम से इस्लाम को बदनाम करने का ये सब चला है। और उसमें कुछ तथ्य नहीं है। इस्लाम में ये कहा गया है एक बेगुनाह आदमी को मारना ये बहुत बड़ा गुनाह है और उसको गुनाहगार समझा जाएगा, ऐसा इस्लाम में कहा गया है। ऑलराइट हुसैन दलवाई, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली के बमकांड में जो मरे उनका क्या संबंध था? हाँ। बेचारे बेगुनाह लोग मरे। हाँ। उनकी फैमिली उजाड़ हो गई। हाँ। ये तो बिल्कुल गलत बात है, इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जी शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वेल वी हैव सम ब्रेकिंग इनपुट्स